الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناولز کاٹیج میں خوش آمدید۔ ہمارے آج کے ناول کا نام ہے تیری عادت ہو گئی اور اس کی رائٹر ہے انا الیاس۔ جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں وہ ضرور چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کا ناول۔ مضراب کب سے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی، مٹھیاں بھیجی تھی، دانت کچکچا رہی تھی۔ عادل بیڈ پہ بیٹھا اس کے پھٹنے کا منتظر تھا۔ تمہارے یہ آہل بھیا کسی دن میرے ہاتھوں ضائع ہو جائیں گے۔ بالآخر آتش فشاں باہر آنا شروع ہو گیا تھا۔ اپنی سرخ انگارہ آنکھوں سے وہ عادل کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے عادل نہیں اس کی جگہ آہل بیٹھا ہو۔ مضراب، وہ بھی اپنے بھائی کی حمایت میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ مضراب نے تیزی سے نیچے پڑے کشنز کے تابڑ توڑ حملے کرنا شروع کیے۔ تم نے اگر ایک لفظ بھی اپنی بھائی کی حمایت میں بولا تو یاد رکھنا ہماری دوستی کا یہ آخری دن ہوگا، وہ اسے وارن کرتے ہوئے بولی۔ میں ان کی حمایت نہیں کر رہا، صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یونی کے ٹرپ پر چلے جائیں گے، مگر یوں صرف اپنے گروپ کے ساتھ کسی بھی ٹرپ پر جانا ٹھیک نہیں، اور ویسے بھی میں بھی تو نہیں جا رہا، تو تمہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے جانے کا؟ عادل نے اسے رسان سے سمجھانا چاہا۔ مسئلہ میرا نہیں تمہارے بھائی کا ہے، اور تمہارے بھائی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مجھے 7 پردوں میں رکھنا چاہتا ہے۔ میرے یونی جانے کا سب سے بڑا مخالف وہ تھا، ہر کام میں رکھنے ڈالتا ہے، اسکول سے کالج اور پھر اب یونی، ہر جگہ خدائی فوجدار بن کر پہنچ جاتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے یونی میں آ کر 2 لیکچرز بھی یہ صرف مجھ پر ہر وقت نظر رکھنے کے لیے لیتا ہے۔ میں اب بچی نہیں ہوں، انہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی، اور مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آتا وہ مجھے تمہارے ساتھ کیسے برداشت کر لیتے ہیں۔ مضراب کی تنقید بیجا نہیں تھی، شروع سے یہی ہوتا آیا تھا۔ آہل اور عادل اس کی پھوپھو نصرت کے بیٹے تھے۔ مضراب نے ماں کا روپ تو نہ دیکھا تھا، مگر نصرت پھوپھو کی آغوش میں چھپتے اسے کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ نصرت اور جہانگیر 2 ہی بہن بھائی تھے۔ ماں باپ جہانگیر کی شادی سے کچھ عرصہ پہلے ہی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ دونوں بہن بھائی کے گھر میں صرف ایک دیوار حائل تھی۔ مضراب کی پیدائش کے وقت منتہا ڈلیوری میں پیچیدگی کے باعث اپنی ننھی پری کو دیکھے بنا، اسے پیار کیے بنا ہمیشہ کی نیند سو گئی۔ جہانگیر اور منتہا کا 2 سال کا ساتھ تھا، مگر یہ 2 سال جہانگیر کے لیے پوری زندگی منتہا کے بعد اس کی یاد کے ساتھ بتانے کے لیے کافی تھے۔ شادی کے سال بعد منتہا پریگننٹ ہوئی اور پھر اس کی پیدائش کے وقت ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی۔ عادل اور مضراب دونوں 1 ہفتے کے فرق سے پیدا ہوئے تھے۔ مضراب نے ہفتہ پہلے اس دنیا میں آنکھ کھولی تھی، مگر منتہا کی اچانک موت جہانگیر تو کیا نصرت و شاہ جہاں کو بھی شدید تکلیف سے دوچار کر گئی۔ 1 ہفتہ غم میں نڈھال رہنے کے بعد نصرت نے عادل کو جنم دیا، اور یوں عادل کے ساتھ ساتھ مضراب کو بھی اپنی گود میں سمیٹ لیا۔ جہانگیر تو اس قابل نہیں تھے کہ مضراب کو سنبھالتے۔ کتنا بڑا غم تھا کہ اس سے باہر آنے کے لیے کتنے ہی مہینے لگے، اور اس تمام وقت میں نصرت نے مضراب کو ماں کی کمی محسوس ہونے نہیں دی۔ آہل 5 سال کا تھا، پھر بھی وہ اپنی عمر کے بچوں کی نسبت کافی سمجھدار تھا۔ جب نصرت مضراب کو لے کر گھر آئیں تب انہوں نے آہل کو بٹھا کر سمجھایا، آہل، اللہ نے آپ کو صرف ایک بھائی نہیں ایک بہن بھی دی ہے، اور آپ نے اور عادل نے بڑے ہو کر اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اس کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دینی، اور مجھ سے بھی زیادہ آپ نے اس کا دھیان کرنا ہے۔ آہل نے ان نصیحتوں کا نہ صرف دماغ میں بٹھایا بلکہ اپنی زندگی کا ایک مقصد بھی بنا لیا۔ وہ مضراب کا ایسے خیال رکھتا تھا جیسے کانچ کی گڑیا ہو، اس کی کلاس کا کوئی لڑکا ہوتا یا لڑکی۔ اگر کبھی آہل کو پتہ چلتا کسی نے مضراب کو تنگ کیا ہے تو وہ اس سے لڑنے پہنچ جاتا۔ بڑے ہوتے ہوتے یہ عادتیں اتنی پختہ ہو گئیں کہ مضراب کی زندگی کے زیادہ تر فیصلے آہل کرنے لگا، اور اس کی بات کو ترجیح بھی دیتے تھے۔ مضراب کالج پہنچنے تک آہل کے اس عمل دخل سے چڑ کھانے لگی تھی۔ جتنا وہ آہل سے چڑتی تھی اتنی ہی زیادہ اس کی دوستی عادل سے تھی۔ گھر میں اکثر سب عادل کو مضراب کی سہیلی کہہ کر چھیڑتے تھے، مگر عادل کے لیے بھی مضراب سے بڑھ کر کبھی کوئی نہیں رہا تھا۔ ان کا کھانا پینا ایک دوسرے کے بغیر مکمل ہو نہیں سکتا تھا۔ عادل وہ واحد لڑکا تھا جو مضراب کے قریب تھا، اور آہل کو اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر عادل کے علاوہ کسی اور لڑکے کو وہ مضراب کے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیتا تھا۔ کالج کے بعد جب یونیورسٹی جانے کی باری آئی تب سب سے زیادہ مخالفت آہل نے کی۔ اب اس کو پرائیویٹ ماسٹرز کروائیں مگر یہ یونی نہیں جائے گی۔ اسی دن ناشتے کے وقت وہ ماں سے 2 ٹوک انداز میں بولا۔ شکر تھا وہاں صرف عادل، نصرت، شاہ جہاں اور آہل ہی موجود تھے۔ مضراب اب آہل کے فیصلوں پر ری ایکٹ کرنے لگ گئی تھی، لہذا آہل نے اس کی غیر موجودگی میں بات کرنا مناسب سمجھا۔ بیٹا آپ کیوں اتنے مخالف ہیں؟ شاہ جہاں نے پہلی بار اس کے فیصلے پر اعتراض کیا۔ بابا وہاں کا ماحول لڑکیوں کے لیے ٹھیک نہیں، ویسے بھی IBA کی ریپوٹیشن اتنی اچھی نہیں ہے۔ انڈے کا پیس کانٹے کی مدد میں منہ میں رکھتے ہوئے بولا۔ بیٹا آپ بھی وہیں سے پڑھے ہی ہیں؟ چائے کے گھونٹ بھرتے انہوں نے جانچتی نظروں سے بیٹے کو دیکھا۔ بابا میں نے لڑکیوں کی بات کی ہے، میں لڑکا تھا اس لیے وہاں کا ماحول ہینڈل کر لیا۔ لمحہ بھر کو
बाप की जानिब देखा। बेटे, आदिल साथ होगा, इसलिए हमें कोई फिक्र नहीं। आहिल हमेशा से बाप की फर्मा बरदारी करता आया था, कभी उनके किसी फैसले पर इनहराफ नहीं किया था, इसलिए अब की बार भी खामोश हो गया, मगर दिल में कुछ और भी तहैया कर लिया। अगले ही दिन आहिल यूनिवर्सिटी पहुंच गया। मे आई कम इन सर? सर फखर के दरवाजे ऑफिस का दरवाज़ा नॉक करके वो अंदर दाखिल हुआ। अरे यंग मैन, कैसे हो? आहिल को देखते ही वो खुशी से अपनी सीट से खड़े होकर उसकी जानिब बढ़े, उसे मोहब्बत से गले लगाया। बैठो, शुक्र है तुम्हें यहाँ आने का ख्याल तो आया। अपनी सीट संभालते सामने बैठे आहिल को मोहब्बत से देखते गोया हुए। आहिल उनके पसंदीदा स्टूडेंट्स में से थे। इस तरह के लड़के उन्होंने कम ही देखे थे, जो ज़हीन होने के साथ साथ नहायत बाअदब भी थे। सर, आपने कुछ दिन पहले एक ऑफ़र की थी कि मैं हफ्ते में 3 दिन आर्जी लेक्चरर के तौर पर फाइनेंस की क्लास ले लिया करूं। आहिर ने कुछ दिन पहले की सर फ़खर की ऑफ़र उन्हें याद दिलाई। बिल्कुल, और अभी तक मैं तुम्हारे जवाब का मुंतज़िर हूँ। उनकी बात पर वो होले से मुस्कुराया। सर, मैं तैयार हूँ, आप मुझे टाइमिंग्स बता दें, इस हिसाब से मैं ऑफ़िस और यहाँ की टाइमिंग्स मैनेज कर लूँगा। MBA करने के बाद से वो अपने बिजनेस पर तवज्जो देने लगा था। सर फ़खर ने कुछ दिन पहले उसे ये ऑफ़र की थी। वो फाइनेंस में इतना माहिर था कि सर फ़खर, जो कि उस IBA के डीन थे, वो चाहते थे कि आहिल उनके स्टूडेंट्स को फाइनेंस पढ़ाए। तब तो उसने मना कर दिया कि उसके लिए बिज़नेस के साथ उसे मैनेज करना मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब मुज़राब के करीब रहने के लिए उसने सुबह नाश्ते की टेबल पर ही ये फ़ैसला कर लिया था कि अगर मुज़राब यूनी में आएगी तो वो भी यहाँ लाजमी आएगा। अरे यार, थैंक यू सो मच, तुमने मेरी ऑफ़र पर बिलाखिर गौर कर ही लिया। मेरे और मेरे डिपार्टमेंट के लिए ये बात किसी ऑनर से कम नहीं होगी कि तुम जैसा ब्रिलियंट स्टूडेंट्स यहाँ हमारे आने वाले नए बच्चों को पढ़ाए। तो बस फिर तुम कल से ज्वाइन कर लो, वो खुशी से बोले। आहिल ने कुछ मज़ीद तफसील पूछी। उसने घर में किसी को इस सारे मामले की भिनक तक नहीं पड़ने दी। वो मुज़राब को की अपने लिए बढ़ने वाली बेजारी से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ था। उसकी रौबदार शख्सियत के सबब वो कभी खुद से तो उसे कुछ कह नहीं सकी थी, लेकिन आहिल को देखते ही जो बड़ा उसकी शक्ल पे बचते थे वो अच्छी तरह जानता था। अब तो वह घर पर भी उस वक्त आती थी जब आहिल नहीं होता था। इस सब के बावजूद उसे मुज़राब के लिए फ़ैसले करने और हर लम्हा उस पर चेक रखने की इतनी आदत हो चुकी थी कि वो चाहने के बावजूद खुद को इस सब से रोक नहीं पाया था। उफ, मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ। मुज़राब की खुशी से चहकती आवाज़ आदिल के कानों से टकराई। यूनिवर्सिटी में आज उनका पहला दिन था। आदिल मोबाइल पर किसी लड़की के साथ मसरूफ़ था। उसके सब सीक्रेट अफेयर्स की मुज़राब को खबर होती थी। आहिल के मुकाबले में आदिल काफ़ी लाउबाली था। खूबसूरती दोनों भाइयों पर ख़त्म थी, मगर आहिल की पर्सनैलिटी में जो रौब और दबदबा था वो आदिल में नहीं था। जो ही आदिल ने उसकी बात का जवाब देने के लिए मोबाइल से नज़र हटाई, एक गैर इरादी निगाह दरवाजे के बाहर गई और साकित हो गई। हम वाकई ख्वाब देख रहे हैं, आदिल आहिस्ता आवाज़ में बुड़बड़ाया। मुज़राब की निगाह अभी तक दरवाजे पर नहीं पड़ी थी जहाँ से आहिल क्लास में दाखिल हो रहा था, मगर रोस्ट्रम तक पहुँचने तक ना सिर्फ वो आदिल और मुज़राब पर एक उचटती सी निगाह डाल चुका था, बल्कि वो दोनों भी उसे देख चुके थे। मुज़राब भी बाकी सब स्टूडेंट्स की तरह आहिल की ताज़ीम में खड़ी हुई, मगर आंखें हैरत और सदमे की ज़्यादती के बाइस फटने के करीब थीं। आदिल अपने साथ हैरान और किसी कदर परेशान खड़े आदिल को बस इतना ही कह पाई, सिट डाउन एवरीवन, वेलकम टू IBA। मेरा नाम आहिल है और मैं आपको फाइनेंस पढ़ाऊँगा। उम्मीद है आप सब भी मेरे पीरियड में अपनी तवज्जो अपनी पढ़ाई पर मरकूज़ रखेंगे, जैसे मैं अपनी तवज्जो आप सब पर रखूँगा। आज तो चूँकि पहला दिन है तो हम एक दूसरे से मुतारिफ़ हो जाते हैं। आगाज़ मैं खुद से करता हूँ। मैं यहीं का स्टूडेंट था, 5 साल पहले मैं यहाँ से फ़ारिग हुआ था। अब आप आज फिर से यहीं हूँ, लेकिन इस रोस्टम से इधर की सीट पर कोई टेंशन नहीं है सिवाय पढ़ने और अच्छे ग्रेड्स लेने की। लेकिन यहाँ इस रोस्टम के इस जानिब की जिम्मेदारी बहुत मुश्किल होती है, जिसमें ना सिर्फ अपनी जॉब के साथ इंसाफ करने की टेंशन होती है, बल्कि सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि अपने स्टूडेंट्स के साथ पूरा इंसाफ किया जाए। मैं उन लोगों में से नहीं जो अपनी गलत बात पर भी डट जाएं। हम टीचर्स भी इंसान होते हैं। जहाँ मेरी गलती देखें मुझे ज़रूर मुतवज्जा करें। चलें जी, अब ये राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। अपनी पुरअसर बातों से सबको मुतासिर करते उसने तारुफ का सिलसिला आगे बढ़ाया। लड़कियां तो लड़कियां, सब लड़के भी उससे मुतासिर नज़र आ रहे थे, मगर 2 लोग ऐसे थे जो उसकी किसी बात से मुतासिर नहीं हो रहे थे, बल्कि गुस्से से उसे घूर रहे थे, और वो आदिल और मुज़राब के अलावा कोई और नहीं थे। वो सारा दिन आदिल और मुज़राब परेशान रहे। घर आते ही दोनों नुसरत के सर हो गए। मामा, आपने बताया क्यों नहीं कि भैया ने हमारी यूनी ज्वाइन की है? आदिल नाराज़गी से बोला। क्या मतलब? नवाला वापस प्लेट में रख कर वो अजीब नज़रों से उसे देखने लगी, जैसे उसकी बात समझने की कोशिश कर रही हूँ। आदिल और मुज़राब के घर आते ही वो खाना लगा चुकी थी। तीनों खाना खाने बैठे थे कि आदिल ने बात का आगाज़ किया। आपको पता है आहिल भाई हमें फाइनेंस पढ़ाएंगे। मुज़राब की आवाज़ में वाज़े दुख था।
क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। आहिल कहाँ से आ गया तुम्हारी यूनिवर्सिटी में? उनके उलझने पर आदिल ने सारा वाकया बताया। आहिल ने तो जिक्र तक नहीं किया। पुरसोच अंदाज में कहा, वही तो, यहाँ तो उन्हें बर्दाश्त करते हैं, अब वहाँ भी करना पड़ेगा। मुस्राब दांत पीस कर बोली। नुसरत ने उसे पुरतासिफ नज़रों से देखा। सॉरी पुप्पो, लेकिन आप भी तो देखे ना, हर वक्त टोकते टोकते रहते हैं। वो मुंह बसूर कर बोली, बेटा वो तुम दोनों के भले के लिए कहता है। अच्छा चलो अब खामोशी से खाना खाओ, रात को आएगा तो पूछूंगी। वो उन्हें खाने की तरफ मतवजा करके बोली। रात में जब नुसरत ने उसे दूध का गिलास देने गई तब उन्हें आहिल से यूनिवर्सिटी के बारे में पूछना मुनासिब लगा। थैंक यू मामा। नॉक करके अंदर आई तो वो बेड पर कुछ किताबें बिखेरे नजर आया। साइड टेबल पर ग्लास रखा। वो तशक्कर से किताब से नज़र हटाकर माँ को देखते हुए बोला, तुमने यूनि कब ज्वाइन की? बेड पर बैठते उसे सवालिया नज़रों से देखकर पूछा। आहिल का दूध का गिलास थामता हाथ एक लम्हे के लिए साकित हुआ। मेरे प्रोफेसर सेशन स्टार्ट होने से पहले मुझे काफ़ी दफ़ा कॉल करके यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने का कह चुके थे। उन्हें बार बार मना करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और कुछ एक्स्ट्रा टाइम था मेरे पास तो सोचा कि ज्वाइन करने में हर्ज नहीं। वैसे भी मेरा ज़ाती ख्याल है कि स्टडीज़ से इन टच रहना चाहिए और मुझे ये बेहतरीन मौका लगा। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? बड़े सरसरी अंदाज में उसने वजह बताई। नहीं, कोई मसला नहीं है, मगर मुझे लगा कि कोई और भी वजह है। उन्होंने खोजती नज़रों से उसे देखा। माँ थी, कैसे ना उसके दिल के हाल से वाकिफ़ होती। वो अपनी बेसाख्ता मुस्कुराहट बड़ी मुश्किल से दबा गया। कौन सी वजह? आंखों में हल्की सी शरारत लिए उन्हें देखा। आहिल, इतनी पाबंदियाँ ना लगाओ इस पर, मुझे डर है वो तुमसे मुतनफ़र ना हो जाए। नुसरत फ़िक्रमंद लहजे में बोली। मामा, मैं पाबंदियाँ नहीं लगाता, मसला सिर्फ ये है कि आप लोग मुंतहा मम्मी के ना होने की वजह से उसकी हर जायज़ नाजायज़ मानते हैं कि कहीं वो उनकी कमी महसूस ना करे, जबकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग है। ये सब करके आप उसे एबनॉर्मल बना रहे हैं। एबनॉर्मलिटी सिर्फ ये नहीं कि कोई पागलों सी हरकत करते, बल्कि जिस चीज़ में इंसान इंतहा पर निकल जाता है वो फिर नॉर्मल नहीं रहता। आपको उसे वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे आप मुझे और आदिल को करती हैं। कभी डांटती भी हैं, हमारी हर ख्वाहिश पूरी नहीं करती। मैं कोई शिकवा नहीं कर रहा, बल्कि आपका ऐसा करना बिल्कुल सही है। औलाद को पता होना चाहिए हर चीज़ मिलना ज़रूरी नहीं, कभी किसी चीज़ के लिए सब्र भी करना होता है, इंतज़ार भी करना होता है। माँ बाप की मेहनत और कमाई का एहसास औलाद के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि आप दोनों हमारी ख्वाहिशात को पूरा करने की अहलियत नहीं रखते, बल्कि सिर्फ इसलिए कई बार हमें मना करते हैं कि हमें इनकार का आदी होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी हमें हर चीज़ नहीं देती और बच्चों को इस बात का अंदाज़ा छोटी उम्र में होना नहीं होता। मुझे भी नहीं था। हाँ, मगर अब जाकर आपकी हिकमत अमली समझ में आती है, तो मैं शुक्र अदा करता हूँ कि आपने हमें ज़िंदगी में सब्र का सबक सिखाया है, ताकि हम अपनी ख्वाहिशों की तकमील में अंधे ना हो जाएं। मगर मामा, आप लोगों ने ये बात मुज़राब के लिए क्यों नहीं सोची? आपने मामू को ये सब क्यों नहीं समझाया? आप उसकी माँ तो बन रही थी, मगर आपने इसके साथ अपने दूसरे रिश्ते का लिहाज भी किया। आपको नहीं करना चाहिए था। मैंने ये सब महसूस किया और मुझे लगा हम उसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। अगर वो बिगड़ गई तो इसमें हम सब का कसूर होगा। बच्चों के ख़राब होने की वजह वो बच्चे खुद नहीं होते, बल्कि उनके इर्द गिर्द मौजूद उनके रिश्ते होते हैं। बच्चे को आप ज़िद से हटना सिखाएंगे तो वो सीख जाएंगे। कोई बच्चा ऊपर से बिगड़ा हुआ नहीं आता, हम लोग उसे ऐसा बनाते हैं। मैं ये बात आप लोगों से बहुत पहले ही करना चाहता था, लेकिन सिर्फ ये सोच कर नहीं की कि आप सब समझेंगे मैं मुज़राब से जेलस होता हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो जितनी आप सबको अजीज़ है उससे कहीं ज़्यादा मुझे भी प्यारी है। वो हमारा एक हिस्सा है, मगर मैं इस हिस्से को ख़राब होते नहीं देख सकता। मैं जानता हूँ मेरा रोकना टोकना उसे बुरा लगता है, मगर ये सब उसके मुंह के बिगड़ते ज़ाविये देखकर रोक नहीं सकता। वो तो नहीं जानती, मगर हम जानते हैं ये उम्र लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए किस कदर ख़तरनाक होती है। ज़रा सी बेतवजही उनकी सारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होती है। आप बेशक इससे वैसे ही रहें जैसे कि हैं, क्योंकि अब आपके उसे रोकने टोकने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो आप सबसे अब ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करती। हाँ, मैं उसके साथ जैसे रहता हूँ मुझे रहने दे, मैं तो बुरा बन ही चुका हूँ, लिहाजा बने रहने दे। वो मुस्कुराते हुए उन्हें इतनी बारीकियाँ बता गया था जो शायद बाकी उन्होंने कभी नहीं सोची थी। उन्हें आहिल की इतनी समझदारी पर आज बेहद फ़ख्र हुआ। वो शुरू से जानती थी वो आम बच्चों की निस्बत ज़्यादा जिम्मेदार और चीज़ों को समझने वाला है, लेकिन मुज़राब के मामले में वो इस कदर समझदारी का सबूत देगा ये वो बिल्कुल नहीं जानती थी। तुम सही कह रहे हो, इस नहज पर मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अगर तुम ये रोक टोक न रखते तो शायद हमारे इस तरह से वो बहुत पहले बिगड़ चुकी होती। बिन माँ के बच्चों की तरबियत करना बेहद आजमाइश तलब काम है। बाप के बगैर तो औलाद सर्वाइव कर लेती है, मगर माँ के बगैर बच्चे रुल जाते हैं। असल तरबियत ही माँ करती है, वही ना रहे तो कौन अच्छा बुरा सिखाता है। मैंने बस यही सोचा कि कभी उसका दिल न दिखाऊं, मगर मैं नहीं जानती थी
کہ یہ سب کرتے وہ غلط سمت میں بھی جا سکتی ہے۔ تم روک ٹوک کرتے ہو تو وہ جھنجھلاتی ہے، مگر وہی بات کہ کم از کم اسے یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ کچھ کاموں کو نہیں بھی کرنا، زندگی میں کبھی نہ بھی سننی ہے۔ اس کے اگلے گھر جانے والی تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں، ہاں مگر پھر بھی لڑکیوں کو تحمل اور صبر والا ہونا چاہیے۔ مگر آہل، میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ وہ تمہیں ظالم تصور کرے، انہوں نے تشویش سے کہا۔ وہ حقیقت میں اب مضراب کا آہل کے متعلق رویہ دیکھ کے پریشان ہو جاتی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا ماما، یہ اس کے وقتی ری ایکشنز ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ماں کو تسلی دلائی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، وہ سچے دل سے دعا کرتے ہوئے بولی۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، وہ ان کے گود میں ہاتھ رکھ کے ہاتھوں کو تھپ تھپا کر بولا۔ لیکن نصرت کا یہ خطرہ غلط نہیں تھا، وہ دن بدن آہل کو اپنا سب سے بڑا دشمن تصور کرنے لگی تھی۔ جب اس کے سب بڑے اس کی بات مان لیتے تھے تو آہل اسے کیا پرخاش تھی کہ وہ مضراب کی ہر بات میں ٹانگ اڑانے پہنچ جاتا تھا۔ جیسے تیسے کر کے یونی میں تو وہ اس کے ساتھ وقت گزار لیتی تھی، اور یہ سب کرتے ایک سیمسٹر گزر چکا تھا۔ اس کی اور عادل کی اپنے کچھ کلاس فیلوز سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ اس دوستی کی کچھ وجہ ان کی اسائنمنٹ گروپنگ بھی تھی جو ان کے ہیڈ نے بنا دی تھی۔ ان کے گروپ میں 4 اور لڑکے اور لڑکیوں کا اضافہ کیا تھا، اور سب مل کر اسائنمنٹس اور پیپرز کی تیاری کرتے۔ ان میں ایک لڑکا شہزاد بھی تھا، کلاس کا CR بھی تھا، ویسے بھی خوش شکل ہونے کے باعث لڑکیوں میں بھی مقبول تھا، مگر اس کی توجہ کا مرکز مضراب تھی۔ مضراب کو بھی شک ہوا تھا کہ وہ اس میں انٹرسٹڈ ہے، مگر اس نے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ وہ عمر کے اس حصے میں تھی جہاں یہ سب باتیں زیادہ تر لڑکیوں کو اچھی لگتی ہیں۔ وہ بھی لڑکی تھی، اس کے اندر بھی چاہے جانے کی خواہش تھی، مگر وہ اپنی خواہش کے لیے کبھی غلط راستوں کی جانب نہیں آئی تھی۔ شاید اس کی زیادہ تر توجہ آہل تھا، جس کی کڑی نظریں اسے اس طرح کی کوئی بھی خواہش کرنے سے ہمیشہ روکتی رہتی تھیں۔ مگر عادل کی لڑکیوں سے دوستی پر آہل نے کبھی کچھ نہیں کہا تھا، اور یہی چیز اسے کھلاتی تھی۔ اس دن بھی وہ سب پلان کر رہے تھے کہ اپنی اپنی گاڑیوں میں 2-3 دن کا کہیں گھومنے کا پروگرام بناتے ہیں۔ پہلے سیمسٹر کے بعد بریک آیا تھا، 1 ہفتے کی چھٹیاں تھیں، لہذا ان کے لیے جانا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ عادل نے یونیورسٹی میں تو حامی بھر لی، مگر گھر آ کر رات کے کھانے پر جب سب موجود تھے تب عادل نے تذکرہ چھیڑ کر اجازت مانگی۔ رات کا کھانا وہ سب اکٹھے کھاتے تھے۔ جہانگیر، آہل، شاہ جہاں کی موجودگی میں عادل کو یہ بات کرنا مناسب لگا، مگر جیسے ہی عادل نے یہ سب بتایا، سب سے پہلا انکار آہل کی جانب سے آیا تھا۔ یونیورسٹی ٹرپ کی بات اور ہوتی ہے، اس میں ٹیچرز اور کچھ اور سٹاف بھی موجود ہوتا ہے، مگر یوں صرف ایک گروپ کی صورت میں کہیں جانا ٹھیک نہیں۔ آہل چاول کھاتے بڑے آرام سے ان دونوں کے پروگرام پر پانی پھیر رہا تھا، جبکہ کسی بڑے نے ابھی تک کچھ نہیں کہا تھا۔ مضراب نے کچا چبانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ آہل کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ وہ اسے گھور رہی ہے، لیکن بھائی وہ لوگ بہت اچھے ہیں، عادل نے منمناتی آواز میں کہا۔ تمہیں کتنا وقت ہوا ہے انہیں جانتے ہوئے؟ آپ سالوں لوگوں کے ساتھ بھی گزار لیں تب بھی اندازہ نہیں کر سکتے کہ کون کیسا ہے۔ تمہاری بات ہوتی تو پھر بھی میں تھوڑا سا مارجن دے دیتا، اول تو ملنا ہی نہیں چاہیے، لیکن مضراب، اپنی بات روک کر اس نے مضراب کی جانب دیکھا، جو اس کے ایک ٹک دیکھنے پہ گھبرا کر نظریں جھکا گئی۔ مضراب کی وجہ سے تو میں کسی بھی قسم کا مارجن نہیں دوں گا، تم دونوں کو گھومنا پھرنا ہے، میں کچھ دنوں کا آفس سے آف لے کر جہاں کہوگے لے جاؤں گا۔ آہل شہزاد کا جھکاؤ مضراب کی جانب دیکھ چکا تھا، مگر مضراب نے چونکہ ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں کی تھی، لہذا اسے زیادہ ٹینشن نہیں تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ پروگرام شہزاد نے بنایا ہے۔ بظاہر کوئی جتنا بھی شریف نظر آئے، مگر پھر بھی ہم کسی کے اصل کو جانے بنا کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتے۔ بظاہر شہزاد شریف لڑکا لگتا تھا، مگر اس نے یہ پروگرام ترتیب کیوں دیا؟ آہل کو یہ بات ٹھیک نہیں لگی تھی۔ عادل اور مضراب نہیں جانتے تھے کہ صبح میں یونی کے کوریڈور سے گزرتے ہوئے وہ ان کے اس پروگرام کے بارے میں باخبر ہو چکا تھا۔ ان کا گروپ کوریڈور میں بیٹھے خوشگپیوں میں مصروف تھا، تبھی گزرتے ہوئے آہل نے ان کی باتیں سنی تھیں۔ مضراب نے غصے بھری نظر اٹھا کر آہل کے سنجیدہ چہرے پر ڈالی۔ بھوک ختم ہو چکی تھی، اس نے فوراً کھانے سے ہاتھ کھینچ لیے۔ آہل ٹھیک کہہ رہا ہے بیٹا، آپ لوگوں نے جانا ہے تو اپنا پروگرام سیٹ کر لو۔ نصرت نے فوراً آہل کی حمایت کی۔ آہل، تم پرسوں تک زکا گروپس کا ٹینڈر مکمل کر لو، پھر پرسوں ان دونوں کو لے کر ناردرن ایریاز چلے جانا۔ شاہ جہاں نے بھی حمایت کی۔ عادل بھی خوش تھا کہ مقصد ان کا گھومنا پھرنا ہی تھا، مگر مضراب اپنی خواہش کے رد کیے جانے پر بری طرح کھول رہی تھی۔ سب کے ٹیبل سے اٹھتے ہی وہ بھی غصے سے بھری عادل کے کمرے میں پہنچی۔ تھوڑی دیر عادل پر غصہ نکال لینے کے بعد وہ نیچے کچن میں آئی۔ نصرت دودھ گرم کر رہی تھی۔ کیا ہوا میرے بچے کو؟ انہوں نے اس کا پھولا منہ دیکھ کر اسے پچکارا۔ آہل بھائی ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ رونے کو تھی۔ بیٹا، اس نے صحیح کہا ہے، دیکھو میری جان، لڑکوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن لڑکی ذات کے لیے بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنے پڑتے ہیں، اس لیے مجھے آہل کے فیصلے میں کوئی برائی نظر نہیں آئی۔ ویسے بھی تم دونوں نے آؤٹنگ پر ہی جانا تھا نا، تو آہل لے جائے گا۔
वो उसे समझाने लगी। कुछ बातें समझ आईं, कुछ उसके सर पर से गुजर गई, या शायद वो समझना ही नहीं चाहती थी। लाएं, मैं आहिल भाई को दूध दे आऊँ? उन्हें कपों में दूध निकालते देखकर वो कुछ सोचकर बोली, हाँ ज़रूर, और दोस्ती भी कराओ। उन्होंने शरारत से उसे देखा। कहीं बन ही ना जाए मेरे दोस्त, वो सर झटक कर बोली। दूध का गिलास थाम कर सीढ़ियाँ चढ़ के आहिल के कमरे के बाहर रुक कर अपने आप को उससे दो दो हाथ करने के लिए तैयार किया। नॉक करने पर कम इन की आवाज़ आई। आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। आहिल सामने राइटिंग टेबल के साथ कुर्सी पर बैठा तेज़ी से लैपटॉप पर काम कर रहा था। मुजराब की जानिब पूछती। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस वक्त दूध का गिलास लिए मुजराब आएगी। टेबल पर उसके करीब गिलास रखा, मगर आहिल को मतवजा न पाकर उसने गला खंखारा। अब की बार आहिल ने चौंक कर दाएं जानिब देखा, आंखों में हैरत से मट आई। आप? सवालिया नज़रों से उसकी जानिब देखा। वो आपसे कुछ बात करनी है। थूक निकल कर उसकी जानिब देखे बिना आंखें नीचे किए बोली, कहो। आहिर समझ गया क्या कहना होगा। प्लीज़ हमें ग्रुप के साथ जाने देना। आहिर आप भी तो यूनिवर्सिटी टाइम में अपने फ्रेंड्स के साथ कभी कहीं जाते रहते थे। उंगलियां चटकाकर उसने आहिल को याद करवाया। मुजराब, हमारे ग्रुप में कोई लड़की नहीं थी। आहिल ने दूध पीते एक उचटती नज़र उस पर डालकर कहा, उफ़ो, तो हम वहाँ कौन सा अफेयर चलाने जा रहे हैं? सिर्फ घूमने ही तो जा रहे हैं। अपनी बात मनवाने के चक्कर में ये भूल गई कि वो कितनी फजूल बात कह गई है। आहिल के चेहरे के तासुरात उसकी बात पर बदले। इनफ मुजराब। गुस्से से एक हाथ टेबल पर जोर से मारते हुए उसने मुजराब को खामोश करवाया। मुजराब डर कर तपक गई। खौफज़दा नज़रों से उसकी जानिब देखा। इतनी बड़ी हो गई हो, आपकी इस तरह की गुफ्तगू मुझसे करो। सख्त कलाम लहजे में उसकी क्लास ली। पता नहीं आपका मसला क्या है, क्यों इतनी रोक टोक करते हैं? मैं अब छोटी बच्ची नहीं हूँ कि जिसके फैसले आप करते फिरें। मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ और अब मुझे आप तो क्या किसी के हुक्म की ज़रूरत नहीं है। वो लावा जो न जाने कब उसके अंदर पल रहा था, बिलाहिर बाहर आ गया। जानता हूँ, मगर ये याद रखना, जो लड़कियाँ बागी होती हैं वो अपना बहुत बड़ा नुकसान करती हैं। आप हम सबको बहुत अजीज़ हो और हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। आहिल को अपने लहजे की सख्ती का एहसास हुआ, लेकिन मुजराब को अपने लफ्ज़ों की बदसूरती का एहसास नहीं था। मज़ीद कुछ भी कहे बिना खामोशी से उसके कमरे से चली गई, मगर जाते जाते जिन तंजिया नज़रों से उसे देखा था वो आहिल को मुस्तरब कर गई। और अगले दिन इसका नतीजा ये निकला कि मुजराब ने कहीं भी जाने से इनकार कर दिया। वो ऐसी क्यों होती जा रही है? नुसरत जिस लम्हे आहिल को मुजराब का फ़ैसला बताने आई, परेशानी से उससे पूछने लगी, ठीक हो जाएगी, आप परेशान ना हो। उन्हें तो तसल्ली दिला दी, मगर ख़ुद वो उनसे ज़्यादा परेशान हो गया था। उस दिन के बाद से मुजराब ने आहिल से बातचीत बंद कर दी थी। सब घर वाले उस नाराज़गी से वाकिफ़ थे, मगर उसे वक्ती रिएक्शन समझ कर इग्नोर करते रहे। मगर ये इग्नोर करना ही उन्हें महंगा पड़ गया। मुजराब आहिल की वजह से इतनी दिल गिरफ्तार हुई कि उसे चिढ़ाने की खातिर शहजाद की जानिब झुकाव बढ़ाने लगी। आहिल यही उसकी खामोशी से यही समझा कि उसे आहिल की बात समझ आ गई है और अब वो कभी ऐसी हरकत नहीं दोहराएगी। लेकिन ये सब की खाम ख्याली थी। काफ़ी सारे दिन यूं ही गुजर गए कि एक दिन आहिल यूनिवर्सिटी के कैफ़े में आया अपना बर्गर लेकर। जिस वक्त वो टेबल की तलाश में मुड़ा, नज़र सीधा सामने बैठी मुजराब पर पड़ी, जो आदिल के साथ नहीं बल्कि शहजाद के साथ अकेली बैठी थी। उसकी बातों पर वो नज़र झुकाकर शर्म से हंस रही थी। आहिल के लिए यह मंजर किसी क़यामत से कम नहीं था। वो तीर की तरह उनके टेबल के पास पहुंचा। मुजराब, यहाँ क्या कर रही हो? उठो यहाँ से। उनके करीब आते वो मुजराब से दुरुस्त लहजे में मुखातिब हुआ। शहजाद ना घबराया ना परेशान हुआ, एक सरसरी निगाह आहिल पर डाली। मुजराब तो उसे देखकर और उसका हुक्म सुनकर बिल्कुल ही आपे से बाहर हो गई। आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपकी हुक्म मानने की पाबंद नहीं। गुस्से से सर झटक कर वो दूसरी जानिब देखने लगी। आपको सुनाई नहीं दिया मैं क्या कह रहा हूँ? उठो यहाँ से। आहिल के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। उसे अंदाज़ा तक नहीं था कि इतने मजमे के सामने वो यूं बदलिहाजी का मुजाहरा करेगी। तलखी खुद ब खुद लहजे में दायरा आई। अब की बार उसने मुजराब के उठने का इंतज़ार नहीं किया, बल्कि कलाई पकड़ कर उसे कुर्सी से उठाया। आहिल की इस हरकत पर वो हैरत से मुंह खोले उसे देखने लगी। शहजाद भी मुश्तिल होकर अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। आप इसके सिर्फ टीचर हैं, टीचर ही बनकर रहें। ये सब आपको सूट नहीं करता। वो मेरी क्लास फेलो है, मैं जब चाहूँ उससे बात करूँ। आप ये सब करने वाले कौन होते हैं? वो गुस्से से बोला। कैफ़े में सन्नाटा छा चुका था। सब आहिल को जानते थे, वो कभी किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व नहीं रहा था। अब कहाँ एक स्टूडेंट पर यूं हक जिता रहा था। सबके जहनों में क्यों का सवालिया निशान गर्दिश कर रहा था। मैं मुजराब का हस्बैंड हूँ और ये सब करने का मुझे हक है। आइंदा इससे दूर रहना, नहीं तो मैं तुम जैसों से बहुत अच्छे से निपटना जानता हूँ। उंगली उठाकर शहजाद को वार्न करता जो इंकशाफ हो कर गया था, वो मुज़ाहमत करती मुजराब को साकित कर गया। आहिल के साथ गाड़ी में बैठने तक उसका सख्ता नहीं टूटा था।
जो ही गाड़ी झटके से एक इशारे पर रुकी, मुजराब भी अपने हवासों में वापस आई। गर्दन मोड़कर आहिल का चेहरा देखा जहाँ चट्टानों से सख्ती तर आई थी। आपने वो सब सिर्फ मुझे वहाँ से उठाने के लिए कहा था ना? हम में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है ना? अटक अटक कर वो मुश्किल अपना खदशा अल्फाज की सूरत जाहिर कर गई। आहिल ने कोई जवाब नहीं दिया। इशारा खुलते ही गाड़ी बढ़ाई। आपसे पूछ रही हूँ। अपनी बात के जवाब में उसे खामोश देखकर वो चिल्लाई, सुन रहा हूँ मैं। आपकी तरह कान और आंखें बंद करके नहीं बैठा, मगर आपके सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। गुस्से से एक नज़र उसको देखकर बोला, क्यों पाबंद नहीं हैं आप मेरे? अगर मुझे आप अपनी जगीर समझ कर ट्रीट कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं आपसे कोई हिसाब किताब मांग सकती? अब की बार बेबसी से रोते हुए मुजराब के हौसले दम तोड़ गए। आहिल को इससे मसला क्या था? क्यों करते हैं आप ये सब मेरे साथ? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? मैं जानती हूँ आप हमेशा से इस बात से जलस रहे हैं कि नुसरत फूफो मुझसे इतना प्यार क्यों करती हैं। आदिल आपकी जगह मुझसे इतना क्लोज क्यों है, और शाहजहाँ अंकल मेरी किसी बात को रद्द क्यों नहीं करते? मगर ये सब इन सब लोगों से करने को मैंने तो नहीं कहा। मेरी मम्मा की अगर जल्दी डेथ हो गई तो इसमें मेरा क्या कसूर है? फूफो और बाकी सब मुझसे मोहब्बत करने लग गए, आपके मुकाबले में मुझे तरजीह देने लग गए, तो इस सब में भी मेरा कसूर है क्या? लेकिन नहीं, आपने ठेका उठा रखा है मुझे हर एक के सामने बुरा बनाने का। अब अगर शहजाद मेरी जानिब मुतवज्जा हो रहा है तो वो भी आपको गवारा नहीं। आखिर आपकी ये दुश्मनी कब खत्म होगी? इस जेलसी का कोई एहतमाम भी है कि नहीं? और आज आपने इतना बड़ा झूठ करा, न जाने किस ने वहाँ सुन लिया और अपने दिल की भड़ास निकाल कर वो बेबसी से सर थामे बैठी थी, ये जाने बिना कि उसके अंदर का गुबार किसी की पूरी हस्ती को झंझोड़ कर रख दिया था। वो ये जो जानता था कि मुजराब उसे बुरा समझती है, मगर इस हद तक ये आज उसके अल्फाज ने अच्छे से वाज़ेह कर दिया था। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती शायद, आप जैसे बेवकूफ़ों के लिए ही कहा गया है। और मेरा और आपका रिश्ता मुझे किस हद तक आपकी ज़िंदगी में इन्वॉल्वमेंट की इजाज़त देता है वो आज आप मामू से पूछ लेना, क्योंकि इतना तो मैं जान गया हूँ। मेरे मुतालिक जिस कदर नफ़रत आपके दिल में है वो मेरी किसी भी बात पर आपको यकीन करने की इजाज़त नहीं देगी। लिहाजा बेहतर है आप मामू या फिर मामा से ही इस बात में छुपी सच्चाई के बारे में पूछना। घर आके गाड़ी रोककर उसे उतरने का इशारा किया। आहिल की संजीदगी में कोई फ़र्क नहीं आया था, मगर मुजराब उसकी बात पर दहल कर रह गई। खामोशी से बैग पकड़कर गाड़ी से उतरी, जैसे किसी ट्रांस की सी कैफियत में थी। उसके उतरते ही आहिल गाड़ी जन से भगा ले गया। घर के अंदर जाकर मुजराब ने खुद को अपने कमरे तक महदूद कर दिया। नुसरत और आदिल के बहुत बार बुलाने पर भी वो कमरे से बाहर नहीं आई। अगर आहिल इतने वसूख से इतनी बड़ी बात कह रहा था तो यकीनन इसमें कुछ सच्चाई थी। आज तक कभी उसने ऐसी कोई बात उससे नहीं की थी। ये मजाक तो कभी भी नहीं हो सकता था। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी से तस्दीक करवाती। वो इस सच का सामना करने से कतरा रही थी। आदिल का बार बार फ़ोन आ रहा था, मगर वो आंखें कान सब बंद करके बैठी हुई थी। मुजराब, अब अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा या फिर बाबा और मामू को कॉल कर दूंगा। आदिल उसके कमरे का दरवाज़ा धड़धड़ाते हुए चीखा। आज उसकी तबीयत ख़राब थी और वो यूनिवर्सिटी नहीं जा सका था, इसीलिए वहाँ होने वाले वाक़े से बेखबर था। जिस वक्त आहिल मुजराब को घर उतार कर गया था उसी लम्हे उसने नुसरत को फ़ोन करके बता दिया था कि वो मुजराब को घर छोड़ गया है। उसकी तबीयत ख़राब थी, इसीलिए वो उसे ले आया। कुछ भी और बताने से उसने इज्तनाब किया। जानता था अगर नुसरत को पता चला कि उनके निकाह वाली बात इस तरह मुजराब पे खुली है तो उन्होंने आहिल को ही सख्त सुनानी थी। वो फ़िलहाल निकाह वाली बात अभी उससे नहीं करना चाहती थी। मकसद सिर्फ ये था कि पहले उसके और आहिल के तल्लुकात कुछ बेहतर हो जाते तब बता देती, लेकिन अब आदिल की आखिरी धमकी पर उसे बिलाहिर दरवाज़ा खोलना पड़ा। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तबीयत ख़राब है तो कम अज़ कम हमें तीमारदारी तो करने दो। ये क्या कि कमरा बंद करके बैठ गई हो? दरवाज़ा खुलने पर आदिल अंदर आते हुए गुस्से से बोला, तुम्हें किसने कहा मेरी तबीयत ख़राब है? उसकी बात पर वो हैरत से बोली, भैया का फ़ोन आया था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, वो तुम्हें घर छोड़कर ऑफिस जा रहे हैं। आदिल की बात पर उसे कुछ देर पहले के वाक़यात याद करके फिर से गुस्सा आया। एक तो तुम्हारे ये भैया, जबड़े भींच कर वो गुस्से से बोली, फूफो कहाँ है? एकदम उसने आर्या पार का सोचते नुसरत का पूछा। किचन में है, तुम्हारी हरकतों से परेशान भी हैं। आदिल उसकी सीडीज़ के रैक के पास जाकर उन्हें उलटते पुलटते हुए बोला। कुछ सोच कर वो बाहर की तरफ बढ़ी। नुसरत के पोर्शन में आकर वो किचन की जाने बढ़ी। अस्सलामुअलैकुम फूफो, मोहब्बत से उन्हें पीछे से जाकर खुद से लगाते कहा। वालेकुम सलाम। रहने दो ये मुंह दिखावे की मोहब्बतें। वो उसके हाथ परे करते हुए खफकी से बोली, कब से परेशान कर रखा है? नाराज़गी जू की तू थी। बर्तन धोते वो उसे देखने से इज्तनाब कर रही थी, जिसका मतलब था कि सख्त खफा है। फूफो, आपसे कुछ पूछना है। वो नुसरत के रवैये पर ज़्यादा गौर नहीं कर सकी।
उंगलियां चटखाते सर झुकाए बोली, क्या बात है, परेशान हो? किसी ने कुछ कहा? उसके संजीदा लहजे पर उन्होंने बिलाहिर उसकी जानिब देखा। परेशान सी लगी। जल्दी से नल बंद करके हाथ साफ किए। दिल घबरा गया। बहुत परेशान हूँ। पलकें उठाई, आंखों में हलकोरे लेते आंसू नुसरत का दिल बेचैन कर गए। क्या हुआ है मेरी जान? उसके कंधों पर हाथ रखा। तो क्या मेरी और आंसू ने गले में फंस के बोलते में दिक्कत पैदा कर दी। कहो बेटा। उसे खामोश होता देखकर नुसरत ने बोलने पर उकसाया। क्या मेरा और आहिल का निकाह हो चुका है? भाई कहते कहते वो मुश्किल रुकी। अब जब जान चुकी थी तो भाई कहने जैसी गलती कैसे करती? तुम्हें किसने बताया? नुसरत बुरी तरह चौंकी। आहिल ने, कहते साथ ही भुभक कर रोई। नुसरत ने सर पकड़ लिया। ये क्या कर दिया आहिल ने? दिल में सोचा, प्लीज फूफो सच सच बताएं, कुछ मत छुपाइएगा। उनके हाथ पकड़े उसने इसरार किया। प्लीज फूफो सच सच बताएं, कुछ मत छुपाइएगा। उनके हाथ पकड़े उसने इसरार किया। देखो बेटा, वो उसे इस अंदाज में ये हकीकत नहीं बताना चाहती थी कि वो सबसे मुतनफ़र हो जाए, और उन्हें लग रहा था कि अब ऐसा ही होगा। प्लीज़ फूफो, जो भी सच है मैं सुनने को तैयार हूँ। वो फिर से रुंधी हुई आवाज़ में बोली, बेटा जब तुम 9 साल की और आहिल 14 साल का था तब हमने तुम दोनों का निकाह कर दिया था। ये सुनते ही मजराब ने कर्ब से आंखें बंद की। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी फूलो सी बेटी को मैं कल को किसी अनजान शख्स को दे दूँ, और ना ही जहांगीर ऐसा चाहता था। तुम तो तब इस रिश्ते की अहमियत को नहीं समझती थी, लेकिन आहिल समझदार था, जानता था कि ये रिश्ता क्या होता है। उसकी मर्जी से हमने ये सब किया। देखो बेटा, सब में कोई गलत मकसद नहीं था। उन्हें समझ नहीं आ रही थी वो किस अंदाज में उसे समझाती कि उसका दिल बुरा ना हो। उनकी तो मर्जी पूछ ली, और मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरी मर्जी कहाँ गई? वो गुस्से से बोली, नहीं बेटे, ये प्लीज़ फूफो मुझे कोई झूठी तसल्लियाँ मत दे। मुझे अफसोस हो रहा है। मैं समझती थी मेरे घर वाले पढ़े लिखे हैं, आम जहनीत के लोग नहीं हैं, मगर आप लोगों ने वही किया जो यहाँ के शायद 90% माँ बाप करते हैं। लड़की को भेड़ बकरी की तरह ट्रीट करते हैं। मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं, कोई वैल्यू नहीं। वो दुख से बली और गलत भी नहीं था। अपनी जगह उसकी सोच बिल्कुल दुरुस्त थी। या अल्लाह, मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ? नुसरत बेबसी की इंतहा पर थी। कुछ मत समझाए, सब समझ गई हूँ। उनके हाथ अपने कंधे से झटकते वो गुस्से से किचन से बाहर निकल गई। क्या बकवास की है तुमने मुजराब के साथ? नुसरत ने उसके निकलते ही आहिल को फ़ोन मिलाया, अपनी भड़ास उस पर निकाली। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हकीकत उसे बताई है, और अब वो बची नहीं कि इन बातों को समझ न सके। आहिल पहले ही तैयार बैठा था। उसे उम्मीद थी कि वो घर जाकर नुसरत पर फट पड़ेगी, और वही हुआ था। इस सब की नौबत क्यों आई? उन्होंने तफ्तीशी अंदाज में पूछा। वो मैं किसी को भी नहीं बता सकता, बस इस सब को ऐसे ही खुलना था, सो खुल गया। अब ये सोचें कि उसे कन्विंस कैसे करना है। वो उनकी तवज्जो दूसरी जानिब दिलाकर पहली बात को पोशीदा करते हुए बोला, वो नहीं चाहता कि शहजाद और मुजराब से मुतल्लिक कोई भी बात घर के किसी बंदे तक पहुँचे। वो सब जो मुजराब पर अंधा एतमाद करते हैं वो लम्हा भर में चकनाचूर हो जाएगा। वो तो ये सब हजम कर गया था, क्योंकि वो इस हकीकत को अच्छे से समझता था कि मुजराब उनके निकाह से बाखबर थी और बेखबर थी, और बेखबरी में इतना मार्जिन देना तो बनता था, मगर ये सब घर वालों को नहीं समझा सकता था। तो बेटा एक काम करो ना, जितनी आसानी से उसे ये सब बता दिया उस तरह रुखसती भी करवा लो। वो तंजिया लहजे में बोली, प्लीज़ मामा, अब आप तो ये सब ना करें। वो उनकी बात पर झुंझलाया। एक तो बीवी एंट रही थी, ऊपर से माँ भी हरी झंडी दिखा रही थी। बेचारा मर्द, वो सोच कर रह गया, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो तो इस कदर बुरा रिएक्शन देकर गई है, तुम्हारे बाबा और जहांगीर ही अब उसे समझाएंगे। वो वाकई बुरी तरह परेशान थी। चलें देखते हैं वो उन्हें क्या तसल्ली देता। अभी तो खुद को आने वाले दिनों के लिए तैयार कर रहा था। रात तक ये बात सबके रम में आ चुकी थी कि मैं मुजराब इस निकाह से वाकिफ़ हो चुकी है। अगर कोई और इस बात पे हैरान था तो वो मुजराब के अलावा आदिल था, मगर वो मुजराब की निस्बत बेहद खुश था। मुजराब ने उसका बाइकआउट कर रखा था। सारा दिन वो अपने कमरे से बाहर नहीं आई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जहांगीर ने बाकी सबको उसे छेड़ने से मना किया। उन्होंने उससे खुद बात करने का फैसला किया। रात में खाना खा चुकने के बाद वो उसके कमरे की जानिब बढ़े। मुजराब रात के खाने पर भी बाहर नहीं आई। उसका खाना उसके कमरे में पहुंचा दिया गया। कुछ देर पहले ही शहजाद से बात करके फारिग हुई थी। वो उसे इस रिश्ते के खिलाफ अच्छी तरह भड़का चुका था। इस वक्त वो बहुत ही दिल गिरफ्तार थी। दरवाजे पर नॉक की आवाज़ आई। कम इन। जवाब मिलते ही जहांगीर अंदर दाखिल हुए। बाबा जानी, मुजराब उन्हें देखकर चौंक गई। कैसी है हमारी बेटी? वो मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए उसे देखते हुए दरवाज़ा बंद करके उसके बेड की जानिब बढ़े, जहाँ वो टांगे फोल्ड किए सीने से लगाए परेशान हाल बैठी थी। बिल्कुल भी ठीक नहीं, वो सरनफी में हिलाते हुए टूटे हुए लहजे में बोली। जहांगीर के दिल को कुछ हुआ।
منتہا کی وفات کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب وہ یوں سب سے خفا ہوئی تھی۔ کسی ایک سے ہو جاتی تھی مگر یوں خفا ہو کر کمرے میں قید کبھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے بیڈ پر بیٹھے۔ بیٹے، بہت سے فیصلے وقت اور حالات کے حساب سے کرنے پڑتے ہیں، انہوں نے تمہید باندھی۔ بابا جانی، ایسے کیا حالات آگے تھے؟ صرف 9 سال کی تھی میں۔ وہ اس بات کو منہ پر ہی نہیں لا رہی تھی کہ اسے بتایا کیوں نہیں گیا۔ ابھی تک وہ یہی دہرا رہی تھی کہ یہ نکاح کیوں ہوا۔ میرا خیال ہے تمہاری پھپھو تمہیں بتا چکی ہے، میں اور وہ تمہیں کبھی دور نہیں جانے دینا چاہتے تھے۔ ویسے بھی گھر کی ہی تو بات تھی، اس لیے آپ نے سوچا اس کی مرضی کو کیا کرنا ہے۔ یہ بیٹی ہے اور بیٹیوں کی مرضی کب کوئی پوچھتا ہے۔ ان کی بات کاٹ کے وہ تلخ لہجے میں بولی۔ مضراب، وہ بے اختیار اسے ٹوک گئی۔ ہاں نا، غلط کیا ہے اس میں؟ مجھے ہر طرح کی آزادی دینے کے بعد میری زندگی کا اتنا اہم فیصلہ آپ لوگوں نے اپنی مرضی سے کیا۔ آپ میں اور ایک ان پڑھ ماں باپ میں کیا فرق رہ گیا؟ اس کے لہجے میں یہ ہٹ درمی اور گستاخی پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ اچھا ہوتا ان پڑھ ماں باپ کی طرح تم پر پابندیاں لگاتے تو پھر لہجے میں یہ کرواہٹ نہ ہوتی۔ وہ پرتعصب نظروں سے اسے دیکھ کر بولی۔ میں یہ نکاح بہت پہلے کرنا چاہتا تھا مگر نصرت و جہانگیر نے مجھے روک دیا۔ انہوں نے کہا پہلے آپ یہ تسلی کر لینا کہ آہل مضراب کے لیے پوری طرح سے قابل ہے کہ نہیں، اور 14 سال کی عمر میں بچے کے طور طریقوں کا کافی حد تک اندازہ ہو جاتا ہے۔ آہل مجھے شروع سے بے حد عزیز تھا۔ اس کی درست روش دیکھ کر میں نے یہ فیصلہ کیا۔ کیا ہمارا فیصلہ اتنا غلط ہے؟ کیا آہل اتنی غلط چوائس ہے؟ کون سی ایسی بات ہے تم اس رشتے پر یوں ری ایکٹ کر رہی ہو؟ آہل، انہوں نے اس سے دو ٹوک بات کی۔ اگر وہ خود کو کوئی لحاظ ملحوظ نہیں رکھ رہی تھی تو اس کا مطلب تھا کہ اس سے کھل کر بات کی جائے۔ بہت سے خدشے ان کے ذہن میں سر اٹھا رہے تھے اور وہ دعا گو تھے کہ یہ خدشے محض خدشے ہی ثابت ہوں۔ میں نے یہ نہیں کہا وہ برے ہیں یا کوئی غلط انسان ہے۔ جہانگیر کے دو ٹوک انداز پہ بات کرنے پر وہ گھبرا کر بولی۔ اب ایسی کون سی خامی آہل کی نکالتی، کیونکہ وہ واقعی ان لڑکوں میں سے تھا جن میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی خامی نظر نہ آئی۔ کیا یہ بہت نہیں تھا کہ اب تک اس نے یہ بات چھپائی ہوئی تھی کہ یہ سب حقیقت کھلنے کی نوبت کیوں اور کس وجہ سے پڑی؟ کیونکہ کسی کے بھی انداز سے یہ نہیں لگ رہا تھا وہ شہزاد والے واقعے سے واقف ہیں، ورنہ سب کے انداز یقیناً بدلے ہوتے۔ تو پھر انہوں نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا جیسے وہ بہت کچھ جان چکے ہوں۔ ضروری ہے کہ آپ کی صحیح چوائس مجھے بھی صحیح لگے۔ ویسے بھی ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں وہ اچھے صحیح، مگر میرے معاملے میں وہ انتہائی خشک انسان ہے۔ غسیلے شوہر ہی ثابت ہوں گے۔ انہیں میری ہر بات سے اعتراض ہوتا ہے، یہ ان کی عادت ہے اور عادتیں کبھی نہیں بدلتی۔ اس نے اپنی طرف سے بڑی مضبوط دلیل پیش کی، مگر اس کی بات کے پہلے الفاظ جہانگیر کو چونکا گئے۔ وہ بھی تمہیں صرف ایک کزن کی طرح ٹریٹ کرتا ہے اور مجھے اس کا یہ انداز پسند ہے۔ جہاں ہم سب نے تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے، کوئی تو ہے جو تمہیں ٹوکنے والا ہے۔ ویسے بھی یہ اس کا کیئرنگ انداز ہے، وہ ہر سرد و گرم سے تمہیں بچانا چاہتا ہے، اور اس سے زیادہ محبت کی کوئی اور دلیل نہیں کہ اس نے اب تک اپنے اور تمہارے تعلق کو جاننے کے بعد تمہیں اس کی ہوا تک نہیں لگنے دی۔ ان کی ٹھوس دلیل کے آگے اسے اپنی باتیں بے تکی سی لگیں۔ وہ سخت گیر کہیں سے نہیں ہے۔ ہاں، وہ معاملات کو بہت ذمہ داری سے دیکھتا ہے۔ ہر باپ اپنے داماد میں یہی ایک بات دیکھنے کا خواہش مند ہوتا ہے کہ وہ اس کی بیٹی کو دنیا کی مصیبتوں سے بچانے کی کتنی اہلیت رکھتا ہے یا لاپرواہی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ آہل نے ہر لمحہ خود کو منوایا ہے، اس کا فیوچر برائٹ ہے۔ ہمارے کاروباروں کو اس نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے، اس سے زیادہ اور تمہیں کیا چاہیے؟ وہ اچنبھے سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ سب باتیں جو کبھی کوئی باپ اپنی بیٹی سے نہیں کرتا، اس کی حماقتوں کے سبب انہیں کرنا پڑ رہی تھی۔ پھر بھی میں یہی کہوں گی، وہ میری چوائس نہیں ہے، وہ بے لچک لہجے میں بولی۔ مضراب، میں یہ سوچنا بھی نہیں چاہتا کہ میری بیٹی ہماری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کسی غیر کو جانے پہچانے بنا اپنی زندگی میں شامل کر چکی ہے۔ کٹیلی نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے یہ سب الفاظ بمشکل اپنی زبان پر لائے۔ مضراب نے نظریں چرائیں۔ جہانگیر اس کی حرکت پر شدید تکلیف سے دوچار ہوئے۔ بابا جانی، مجھے اس نکاح کا علم نہیں تھا، اور اگر ہوتا بھی تب بھی آہل میری چوائس نہیں ہو سکتے۔ میں کسی اور سے شادی کر لوں گی، ان سے نہیں۔ اٹک اٹک کر کہتے بھی وہ شہزاد کا نام نہیں لے پائی۔ نام بتاؤ۔ انہیں لگا ان کی آواز کسی گہری کھائی سے آئی ہو۔ ایسی حرکت کرنے پر بیٹیاں ماں باپ کو گہری کھائی میں ہی پھینک دیتی ہیں۔ پسند کرنا اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور مضراب اس وقت صرف ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ شہزاد میرا کلاس فیلو ہے بابا جانی، یہ کوئی طوفانی عشق نہیں ہے، مگر وہ اچھا انسان ہے، بس اسی لیے اسے سمجھنا ایک باپ کے سامنے یہ سب کہے۔ جو بھی تھا وہ کبھی اتنی بے باک نہیں رہی تھی، لیکن اس کی ضد اسے ہر اچھی عادت کو ترک کرنے کا کہہ رہی تھی، اور وہ کر رہی تھی۔ کتنا جانتی ہے اسے؟ 4 ماہ، 6 ماہ، 2 سال، 10 سال؟ وہ دکھ سے بولے۔ بابا جانی، ضروری نہیں کہ کسی اچھے انسان کو سالوں میں جانا جائے،
جو اچھا ہوتا ہے اس کا لمحوں میں پتہ چل جاتا ہے۔ جہانگیر اس کے بے دھڑک بلکہ کسی حد تک بے شرم انداز پر اسے دکھ سے دیکھنے لگے۔ یہ ان کی مضراب تو نہیں تھی، وہ کبھی ان سے اس انداز میں نہیں بولی تھی، کبھی یوں بحث نہیں کی تھی۔ اور جب بچے ماں باپ کے سامنے تن کر کھڑے ہو جائیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بھڑکانے والا ضرور ہوتا ہے۔ وہ بغیر دیکھے شہزاد کو پرکھ چکے تھے۔ اس وقت میرے پاس کچھ اور کہنے کو نہیں ہے۔ وہ واقعی بے حد دل گرفتہ ہوئے تھے۔ مزید کچھ بھی کہنے اور سنے بنا وہ اس کے کمرے سے جا چکے تھے۔ مضراب کوشش کے باوجود انہیں روک نہ پائی۔ اگلے دن جہانگیر جھکے سر اور گردن سمیت بہن کو اپنی بیٹی کی کوتاہی بتا چکے تھے۔ مجھے معاف کر دیں آپا، شاید میری ہی بیٹی اس قابل نہیں ہے کہ آہل جیسے بندے کی زندگی کا حصہ بنتی۔ وہ نحیف آواز میں بولے۔ ایک ہی دن میں وہ برسوں کے بیمار لگ رہے تھے۔ نصرت سر پکڑے بیٹھی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میری تربیت میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہوگی، ورنہ مضراب ایسی نہیں تھی۔ انہیں آہل کی باتیں یاد ہیں۔ واقعی اپنی ماں کے علاوہ تربیت ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو ماں کا درجہ اتنا بلند نہ ہوتا اور کسی کی بھی اولاد کی تربیت کوئی بھی دوسری عورت بآسانی کر دیتی۔ نہیں آپا، ایسا مت کہیں، میں جانتا ہوں آپ نے اس کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر شاید اسے یہ سب راس نہیں آیا۔ وہ کہتے بھی تو کیا۔ منتہا کے بعد نصرت کے سر چھوڑ کر وہ جیسے اپنی ہر ذمہ داری سے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ ان سب میں انہیں بھی اپنا قصور نظر آ رہا تھا۔ اولاد کی ہر بات مان لینا ہی ان سے محبت نہیں ہے، بلکہ ان کی شخصیت کو نکھارنا اصل محبت ہے۔ جس طرح کندن کو نکھارنے کے لیے بہت بار کوئلے کی بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے، اسی طرح اولاد کی اچھی تربیت کرتے وقت بہت بار ماں باپ کو سختی سے کام لینا پڑتا ہے۔ اس سے پہلے کہ اولاد زبانے کی ٹھوکر کھا کر سدھرے، بہتر ہوتا ہے کہ ماں باپ ہی اولاد کو پالتے پوستے کبھی کبھی انہیں سختیوں سے گزاریں۔ یہ بات جہانگیر کو بلکہ سبھی کو بہت دیر سے سمجھ آئی تھی، اور آہستہ آہستہ یہ بات سب کو پتہ چل گئی کہ مضراب کس لیے آہل کو ریجیکٹ کر رہی ہے۔ آہل کو جیسے ہی سب کی خبر ہوئی، وہ مضراب کے سر پر جا پہنچا۔ شام کا وقت تھا۔ وہ مطمئن سے اپنے پورشن کے لان میں لان چیئرز پہ بیٹھی چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ساتھ ساتھ شہزاد کے ساتھ موبائل پر چیٹنگ بھی جاری تھی۔ وہ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں پر پوری طرح قابض ہو چکا تھا۔ میں نے بابا جانی سے بات کر لی ہے، مجھے امید ہے وہ کچھ دن ناراض رہیں گے، پھر ہمارے لیے مان جائیں گے۔ آخر میں ان کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ وہ بے حسی کی انتہاؤں کو چھو رہی تھی۔ اس قدر بے حسی در آئی تھی کہ رات سے کمرے میں بند جہانگیر کی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ شہزاد کے ساتھ اپنے مستقبل کے تانے بانے بننے میں لگی ہوئی تھی۔ گریٹ یار، وہ تمہارے سو کالڈ شوہر کے کیا حالات ہیں؟ وہ تو کوئی پھڈا نہیں کرے گا۔ شہزاد کے رپلائی پر استہزائیہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ کر معدوم ہوئی۔ ابھی وہ جواب لکھنے میں مگن تھی کہ آہل اس کے سر پر آ پہنچا۔ کیا بکواس کی ہے آپ نے ماموں سے؟ اس نے چونک کر سر اٹھایا، اپنے قریب کھڑے آہل کو دیکھ کر برا سا منہ بنایا۔ وہ میرا اور میرے بابا کا معاملہ ہے، آپ ہوتے کون ہیں کچھ کہنے والے؟ اس کا لہجہ آہل کو بڑی مشکل سے اس کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کرنے سے روک رہا تھا۔ جب تک آپ میرے نکاح میں ہو، آپ کا اور میرا معاملہ الگ الگ نہیں ہے۔ اس کے قریب جھکتے ہوئے وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔ اس نے گھبرا کر چہرہ تھوڑا سا پیچھے کیا۔ ایسے نکاح کو میں نہیں مانتی جس میں میری مرضی شامل نہیں۔ لہجہ متوازن کرتے وہ پھر سے اسی لہجے میں بولی۔ کیا کرو گی؟ کورٹ جاؤ گی؟ خلا کا کیس دائر کرو گی؟ اس کے سامنے رکھی کرسی کو اس کے قریب کر کے اس پر بیٹھتے آگے کو جھک کر طنزیہ نظر اس پر گاڑی۔ ایسے بولا جیسے اس کی سوچ تک رسائی حاصل کر لی ہو۔ اوکے، گو اہیڈ۔ جس شخص کے کہنے پر آپ اپنی اور ہم سب کی زندگی کو خراب کرنے کا مشن لیے ہوئے ہیں، اس کی کہو کہ آپ کے بارے میں ہر سچائی اپنے ماں باپ کو بتا کر سیدھے راستے سے رشتہ بھیجے۔ جس دن وہ اپنی ماں باپ کی مرضی سے رشتہ لے آیا، میں اسی دن آپ کو آپ کی مرضی کا فیصلہ سنا دوں گا۔ یہ میرا آپ سے پرومس ہے۔ یہاں سب کو بھی میں خود ہینڈل کر لوں گا، اور اگر وہ یہ سب نہ کر سکا تو پورے 15 دن بعد آپ کو میری بیوی کی حیثیت سے یہاں سے میرے کمرے میں رخصت ہونا پڑے گا۔ 15 دن کا ٹائم ہے، اس سے زیادہ میں یہاں اس گھر کے کسی بندے کو آپ کے لیے کنونس نہیں کر سکتا۔ آہل کی بات پر وہ حد تک بس اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس سے دستبرداری کی بات بھی کر سکتا ہے۔ وہ تو یہی سوچے بیٹھی تھی کہ وہ شہزاد والی بات پر بھڑکے گا اور اسے کبھی نہیں چھوڑنے کی باتیں کرے گا، بدلہ لینے کا کہے گا، اور وہ پھر سب کے سامنے اس کی صفاقی بیان کرے گی۔ مگر یہ کیا وہ اتنا ہی اچھا ہے کہ اس کا ذہن منتشر ہو چکا تھا۔ کیا ہوا آپ کو پتہ ہے؟ ماموں اس سب کے بعد کس قدر غصے میں ہیں۔ وہ تو آج رات آپ کی رخصتی کرنے پر مصر تھے، مگر میں نے ہی انہیں روکا اور یہ 15 دن کا ٹائم بھی مانگا۔ اس سے زیادہ میں آپ کو فیور نہیں دے سکتا۔ آپ شہزاد سے بات کرو اور مجھے جلد ہی جواب دو تاکہ میں یہاں سب کو منا سکوں۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ پھر سے بولا۔ وہ انجان تھی کہ جہانگیر کیا فیصلہ کیے بیٹھے ہیں۔ آہل کی زبانی سن کر وہ اور سکتے میں چلی گئی۔ تو پھر آپ بات کرو گی اس سے؟ وہ اتنا اصرار کیوں کر رہا تھا اپنی ہی بیوی کے لیے؟ مضراب نے اسے پھر سے خالی خالی نگاہوں سمیت دیکھا، ہولے سے سر اس بات میں ہلایا۔ گڈ،
उसके गोद में रखे हाथों को थपथपा कर कुर्सी धकेल कर उठा और मतवाजन चाल चलता चला गया। उसकी वजह शख्सियत की तो वो हमेशा से कायल रही थी, मगर इस लम्हे न जाने क्यों वो पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगा। नरम से तासुरात समेत जब वो उसे देख रहा था, मुजराब के दिल को कुछ हुआ। क्या कोई अपनी बीवी के लिए ये सब कर सकता है? खुद से सवाल किया, मगर कोई जवाब न मिला। गहरे सन्नाटे छा गए। अगले दिन यूनिवर्सिटी में फ्री पीरियड के वक्त उसने शहजाद से वो सब कहने का सोचा जो आहिल उसे कह गया था। कल आहिल मेरे पास आए थे, वो कह रहे थे वो मुझे छोड़ देंगे, मगर तब जब तुम अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी से मेरे घर मेरा रिश्ता लेकर आओ, और वो इस सब के लिए हमारे पास सिर्फ 15 दिन है। उसकी बात पर शहजाद जो बहुत खुश हो रहा था यकदम मुश्तिल हुआ। ये क्या बकवास है? ऐसा कैसे हो सकता है? शहजाद की बात पर उसके चेहरे पर एक साया लहराया। क्या मतलब? क्या तुम मुझसे शादी की ख्वाहिशमंद नहीं? वो बेयकीनी से उसे देख रही थी। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं, लेकिन 15 दिन में मैं अपने पेरेंट्स को नहीं मना सकता। वो हकलाकर बोला, जब आहिल मेरे घर वालों को मेरे लिए इतने दिनों में कन्विंस कर सकते हैं तो तुम्हारे पेरेंट्स क्यों नहीं? अब की बार मुजराब गुस्से से बोली, तुम कोई कुंवारी लड़की नहीं हो कि मैं अपने माँ बाप को कहूँ कि फ़लाँ लड़की के लिए रिश्ता ले जाएँ तो वो मान जाएंगे। तुम्हारा निकाह हो चुका है और तुम तलाक याफ्ता होगी। खुद सोचो, एक तलाक याफ्ता की हमारे माशरे में क्या हैसियत होती है। शहजाद की बातों पर उसे लगा कि उसके दिमाग में धमाके हो रहे हैं। तुम मुजराब से बोला ना जा सका। देखो, ये कोई फिल्म या कहानी नहीं है, हकीकत है, और इसमें हमें हकीकत पसंद बनकर ही सोचना होगा। अब बेशक तुम्हारी रुखसती नहीं हुई, लेकिन तुम दोनों एक लंबे अरसे से एक दूसरे के साथ रह रही हो। क्या बता तुम दोनों में ताल्लुकात की नोयत। एनफ शहजाद, मैं तुमसे शादी की भीख मांगने नहीं आई, ना मुझे कोई तूफ़ानी मोहब्बत है कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। मैं तुम्हें हरगिज़ इजाज़त नहीं दे सकती कि मोहब्बत के नाम पर तुम मेरी ज़ात की धज्जियाँ उड़ाओ। मेरा और राहिल का क्या रिश्ता है, किस हद तक है, मुझे तुम्हें तो क्या किसी को भी वजाहत देने की ज़रूरत नहीं। आइंदा मुझे अपना चेहरा भी मत दिखाना। वो सोच भी नहीं सकती थी कि शहजाद उसके और राहिल के बारे में इस हद तक सोच लेगा। क्या मोहब्बत ऐसी होती है? अपने महबूब की इज़्ज़त को भरे बाजार में रुसवा करने वाली, महबूब के किरदार पर उंगलियां उठाने वाली। वो तेज़ कदमों से अपने डिपार्टमेंट की जानिब बढ़ी। हर मंजिल जा रहा था, आंखों से आंसू रुका थे जिन्हें वो तेज़ी से साफ कर रही थी। घर आकर भी वो अपने कमरे में बंद हो चुकी थी। किसी का सामना करने की उसमें हिम्मत नहीं थी। जिस शख्स के लिए वो अपने जान से प्यारों के आगे तन के खड़ी हो गई थी, वो अपने दावों में इतना बोधा निकला था। आदिल को यूनिवर्सिटी में ही अंदाज़ा हो गया था कि उसके साथ कोई मसला है। घर आकर उसके यूं छुप जाने पर उससे रहा न गया तो उसके कमरे में आ पहुंचा। क्या हुआ है? दरवाज़ा नोक करके इजाज़त मिलने पर वो कमरे में दाखिल हुआ। कोई भी तमहीद बांधे बिना वो मुजराब से मुखातिब होता। उसके कमरे में राइटिंग टेबल के करीब मौजूद कुर्सी बेड के पास लाकर उस पर बैठा, जहाँ बेड पर मुजराब आंखों में वीरानी लिए बैठी थी। उसे मुजराब को ज़ोर से पुकारना पड़ा। क्या मैंने गलत शख्स का इंतखाब किया है? किससे मदद मांगती? सभी तो वो खफा कर बैठी थी। सिर्फ एक आदिल ही बचा था। लहजा उससे पूछा, देखो मुजराब, मैं इस वक्त आहिल भैया का भाई बनकर नहीं, बल्कि सिर्फ तुम्हारा दोस्त बनकर तुम्हारे पास आया हूँ। अगर गैर जानबदारी से सोचा जाए तो आहिल भैया में ऐसी कोई खामी नहीं कि उन्हें यूँ रिजेक्ट किया जाए। तुम उनकी बाकी सब सिफात को छोड़ दो, सिर्फ इस एक खूबी को याद रखो कि कौन सा ऐसा शोहर होगा जो अपनी बीवी को किसी गैर और नामरहम के साथ देखकर भी उसे मोर्दे इल्ज़ाम न ठहराए, उस पर शक न करे, उसे मार्जिन देने की बात करे। तुम यकीन करो, मुझे खुद पता नहीं चला कब शहजाद तुम्हारी जानिब मुतवज्जा हो, और ये सब जानने के बाद मुझे भी तुम पर शदीद गुस्सा आया कि तुम्हें इतनी आज़ादी देने का क्या यही असर हुआ कि और बहुत सी आम लड़कियों की तरह तुम भी हमारे हाथों से निकल गई। और जब यही सब मैंने आहिल भैया से कहा तो वो बोले, आदिल वो इंसान है और हर शख्स ज़िंदगी के मोड़ पर कभी न कभी ये ख्वाहिश करता है कि वो चाहा जाए। उसकी ये ख्वाहिश गलत नहीं और इसका ये इक़दाम भी गलत नहीं, क्योंकि वो इस निकाह से ही अनजान थी। उसने कुछ भी जानने बूझते नहीं किया, लिहाजा हमें उसे ये मार्जिन देना चाहिए कि वो अपने फ़ैसले को सुधार सके। इसमें इसकी गलती कहीं भी नहीं है। अगर मैं भी इसकी जगह होता तो शायद मेरा भी रिएक्शन मुख्तलिफ ना होता। ये कोई कमरे की सिलेक्शन, गाड़ी की चॉइस या कपड़ों की ख़रीदारी की बात नहीं है कि हमने अपनी मर्ज़ी कर ली, बल्कि ये उसकी उम्र भर की ज़िंदगी की बात है। इसलिए ये सब मानने में उसे कुछ वक्त लगेगा और हमारी अक्लमंदी ये है कि हम उसे वो वक्त दें। आहिल की बातें बताकर वो कुछ लम्हे के लिए रुका और मुजराब, जो पहले ही शहजाद की बातों की वजह से उससे मुतनफ़र हो चुकी थी, आहिल के ख्यालात सुनकर अपने आंसू रोक न सकी। अब तुम मुझे ये बताओ कि क्या ये उनकी आला ज़रफ़ी नहीं कि वो इसे तुम्हारी गलती नहीं मान रहे, जबकि मेरे नज़दीक अगर तुम्हारा निकाह ना भी होता तब भी तुम्हें यूँ किसी को पसंद करके हट दर्मी का इख्तियार हासिल नहीं होना चाहिए था। हमारे माँ बाप ने हमें ये तरबियत नहीं दी। वो फिर से खामोश हुआ, उसके आंसू साफ किए। अब तुम्हारी पसंद पर बात करते हैं। क्या शहजाद ने आहिल भैया की तरह आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा किया है?
क्या अगर भैया तुम्हें तलाक दे दे तो वो तुम्हें कबूल कर लेगा? आदिल कुछ और भी कहता कि मुजराब फूट फूट कर रो दी और सुबह की अपनी और शहजाद की गुफ्तगू उसे मनोवन सुनाई। अब तुम खुद सोचो कि कौन सी चॉइस बेहतरीन है, तुम्हारी या हमारे बड़ों की? मुजराब, हम बच्चे सिर्फ वही देखते हैं जो हमें सामने नजर आ रहा होता है, लेकिन हमारे माँ बाप अपनी ज़िंदगी और तजुर्बों के बायस वो सब भी देख लेते हैं जो हमें बहुत देर बाद समझ आता है। अब अगर हम किसी भी टीनेजर के बच्चों की फीलिंग्स और उनकी उम्र के तकाज़ों को समझने की अहलियत रखते हों तो ये सब उसी लिए होगा कि हम इस दौर से गुजर आए हैं। अब हमारे पास इस उम्र का तजुर्बा है। इसी तरह हमारे माँ बाप इस दौर से गुजर चुके हैं, वो जानते हैं हमारे लिए सही गलत क्या है। आदिल ने सच्चे दिल से उसे समझाया। मगर अब क्या होगा? मैं सबको नाराज़ कर चुकी हूँ। आहिल क्या सोचेंगे मेरे बारे में? तो क्या वो इस रिश्ते को कबूल कर रही थी? आदिल को उसकी बात सुनकर खुशगवार सी हैरत हुई। सब ठीक हो जाएगा। क्या तुम शहजाद से दस्तबरदार हो चुकी हो? आदिल ने अपनी सोच पर तस्दीक की मोहर लगानी चाहिए। मैंने उसे कभी अपनाया ही नहीं था कि दस्तबरदार हूँ। वैसे भी मैंने कौन सा उसे इश्क मोहब्बत के राग लापे थे। बस निकाह का सुनकर मैं अपसेट हो गई थी और ऐसा लगा कि शहजाद की सूरत इस रिश्ते से रिहाई मिल जाएगी। वो सच्चे दिल से अपनी गलतियों का एतराफ़ कर रही थी। मैंने आहिल की सिर्फ ज़ाहिरी बातों को देखा था, ये सोच भी नहीं सकी थी कि इस शख्स ने कहाँ कहाँ मुझे बचाया है। एक और एतराफ़, और फिर मालूम हुआ कि मेरे भैया सच्चे दिल से तुमसे मोहब्बत करते हैं। आदिल शरारत से बोला। मोहब्बत का तो मुझे नहीं पता, हाँ यकीनन वो मेरा ख्याल ज़रूर रखते हैं। आहिल के जिक्र पर उसके चेहरे पर लाली बिखरी। क्या वो मुझे मेरी हिमाकतों पर माफ़ कर देंगे? लहजे में परेशानी छलकी। बिल्कुल, मगर कब तक ये तो वही जानते हैं। बहरहाल तुमने उन्हें हर्ट किया है। आदिल ने उसे डराया। उसी रात आदिल के कहने पर उसने डाइनिंग टेबल पर ही सबसे माफ़ी मांगने का वादा किया। डाइनिंग टेबल पर बिल्कुल खामोशी थी। आदिल ने आंखों से उसे इशारा किया जो बारी बारी सबके चेहरों को देख रही थी। सबके चेहरों पर संजीदगी रकम थी। वो थोड़ा झिझकी, मुंह बसूर कर आदिल को देखा। उसी लम्हे आहिल की निगाह उस पर पड़ी। आदिल ने घुड़का। अब मुश्किल मरहला ये था कि किसी को मुखातिब करती या बस ऐसे ही बोलती थी। मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। आंखें बंद करके वो जल्दी से बोली। आहिल की हंसी छूट गई जिसे उसने बड़ी मुश्किल से काबू किया। नुसरत, जहांगीर और शाहजहां ने पहले उसे और फिर एक दूसरे को देखा। बेटा, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आप इस रिश्ते को बरकरार नहीं रखना चाहती तो हमें कोई एतराज़ नहीं। हमारी खामोशी सिर्फ इसलिए थी कि हम सब ज़हनी तौर पर इस सब के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अब कुछ नहीं बाबा। मुजराब ने शाहजहां की बात काटी। वो शुरू से आदिल और आहिल की तरह उन्हें भी बाबा कहती थी। मुझे समझ आ गई है, मैं गलत थी। बड़े हमेशा अपने बच्चों की बेहतरी के लिए फ़ैसला करते हैं और हम बच्चे सिर्फ अपना मुफाद सोचते हैं। ये सब सोचते ये तक भूल जाते हैं कि हमारी वक्ती खुशी हासिल करने के ये फ़ैसले हमें उम्र भर तकलीफ़ से दो चार करेंगे। मुझे कुछ दिन में ही सही मगर ये समझ आ चुका है कि आप सब ने मेरे लिए बेहतरीन शख्स का इंतखाब किया है और जिसे मैं हीरा समझती थी वो पत्थर के सिवा कुछ नहीं था। ऐसा पत्थर जो रास्ते में लोगों को सवाए ठोकर और तकलीफ़ देने के कुछ नहीं। मैंने आप सबसे बहुत बदतमीज़ी की और इसके लिए मैं कभी खुद को माफ़ नहीं करूँगी। प्लीज़ आप सब मुझे माफ़ कर दें। फूफो वैसे ही मुझे समेट लें जैसे मेरे छोटे होते मेरी गलतियों पर आप मुझे अपनी आगोश में समेट कर कहती थी। कोई बात नहीं, दोबारा ऐसे नहीं करना। नुसरत के साथ बैठी उनके हाथ पकड़े वो फूट फूट कर रो पड़ी। सबकी आंखें नम हो गई। वो सबको थी ही इतनी प्यारी। ना मेरी जान, ऐसे नहीं करते। नुसरत उसे क्या चुप करवाती, उनके अपने आंसू थमने को तैयार न थे। और यूं 15 दिन बाद मुजराब दुल्हन बनी हकीकत में आहिल के कमरे में मौजूद थी। जहांगीर इस वाक़े के बाद इस कदर खौफजदा हो चुके थे कि उन्हीं की एमा पर 15 दिन बाद मुजराब की रुखसती करवा दी गई। हालांकि शाहजहां ने कहा भी कि उसकी पढ़ाई मुकम्मल होने तक हम इंतज़ार कर लेते हैं, लेकिन जहांगीर मुझसे थे कि रुखसती करवा लें। नुसरत तो वैसे ही कब से ये चाहती थी। बाकी सब भी खुश थे। सब ने मुजराब को माफ़ भी किया और इससे बातचीत का सिलसिला भी वैसे ही शुरू कर दिया सवाए आहिल के। उस दिन जब मुजराब ने माफ़ी मांगी तब से शादी होने तक उसने मुजराब से कोई बात नहीं की और ये एक बात मुजराब को परेशान कर गई। उस दिन तो वो इतनी आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा कर गया था और अब वो तंग दिल आम शोहर बन गया है। सब कमरे से जा चुके थे और वो अपनी मुख्तलिफ सोचों के साथ अकेली आहिल के आने का इंतज़ार कर रही थी। सारे फंक्शन में उसे लगा जैसे वो एक लम्हे के लिए भी उसकी जानिब मुतवज्जा नहीं हुआ। क्या उसने मुझे माफ़ नहीं किया? फ़िक्र और परेशानी अरूज पर थी। इससे पहले कि ये परेशानी कोई और रूप इख्तियार करती और उसकी आंखों से आंसू की सूरत बाहर आती, कमरे का दरवाज़ा खुला। बेड पर पिस्ती रंग के खूबसूरत लहंगे में मलबूस वो गोल्ड नेट के दुपट्टे का घूंघट निकाले आहिल के होश उड़ा रही थी। कुछ देर तो वो कमरे में खड़ा उसकी मौजूदगी का यकीन करता रहा। पिछले दिनों उसके रवैये के बायस उसे ऐसा महसूस हुआ
कि मुजराब अब कभी उसकी ज़िंदगी में शामिल नहीं होगी। एक गहरा सांस फंसा के सुपुर्द करते वो आगे बढ़ा, मगर उसका रुख कमरे में मौजूद डेस्क की तरफ था, जो राइटिंग टेबल के साथ था। उलट पुलट कर एक सीढ़ी मध्यम सी आवाज़ में लगाई। कमरे में हल्की सी मौसीकी की आवाज़ माहौल को बेहद रोमांटिक बना रही थी। आहिल ने कोट उतार कर कुर्सी पर रखा, टाई की नाट ढीली करता एक चुटती सी निगाह मुजराब पर डाली। मुजराब को समझ नहीं आ रही थी कि वो इस कदर खामोश क्यों है। उस पर गुस्सा था तो निकालता, चीखता चिल्लाता बोलता, मगर ये खामोशी। कई मरतबा अपनों का गुस्सा नहीं उनकी खामोशी मार डालती है, और इन लम्हों में मुजराब उसकी खामोशी से अदमुई हो रही थी। आहिल सोफे पर बैठा टांग पे टांग जमाए जैसे नेट के दुपट्टे के पार उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रहा था। मुजराब उंगलियों में पहनी हुई अंगूठियों को कभी उतारती कभी पहन रही थी। जब सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तब गुस्से से घूंघट उतार कर बेड से नीचे पाँव रखे। आंसू के तार दर के तार बह रहे थे। सू सू करती वॉशरूम की जानी बढ़ी, मगर वायरे किस्मत, आहिल के पास से गुजरते बाजू एक आहनी शिकंजे में आ चुका था। बस इतना ही हौसला था। उसके मुकाबिल खड़े होते आहिल उसके आंसू से तर चेहरे को देखकर सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला, मैंने सॉरी कर लिया था, फिर भी आपने मुझे माफ़ नहीं किया। गुस्सा है तो निकाले मुझ पर, डांटे मारे, लेकिन यह खामोशी की मार न मारे। कब आहिल उसके दिल के इतना नज़दीक आया उसे पता भी नहीं चला। हाँ, मगर इन 15 दिनों में जो एक काम उसने शदोमत से किया था वो आहिल को सोचने का था। बचपन से अब तक की उसकी हर डांट याद की। अब गैर जानिबदारी से सोचा तो उसकी डांट में छुपी मोहब्बत याद आई। मगर ये क्या, अब जब वो उसकी दस्तरस में थी तो वो उससे इज्तनाब बरत रहा था। आपके ख्याल में मैं दीदा दिल फर्श राह किए बैठा हूँगा कि मेरी बीवी आएगी और मैं हर पिछली बात हत्ता कि उसकी पिछली मोहब्बत तक भुलाकर उसे अपना लूँगा। उसके आंसू आहिल को बेचैन कर रहे थे, मगर वो सख्त दिल बना खामोशी से देखता रहा। मैंने किसी से कोई मोहब्बत नहीं की, हिमाकत थी, एक रद्द-ए-अमल था और कुछ नहीं। वो भारी आवाज़ में चिल्लाकर बोली, अगर सारी ज़िंदगी इसी बात का ताना देना था तो फिर रुखसती क्यों करवाई। नाराज़ नज़रों ने आहिल के दिल तक को छू लिया। होले से मुस्कुराया। एतराफ़ सुनना था। उसकी बात पर वो आंखों में हैरत समोए उसे देखती रही। मेरी मन को हक किसी की मोहब्बत का एतराफ़ तो धड़ल्ले से करे, चाहे वो मोहब्बत वक्ती हो, मगर मेरी मोहब्बत को मुझसे छुपा कर रखे, ये तो नाइंसाफ़ी हुई ना। मुस्कुराहट दबाए उसकी आंखों में झाँका। मैं भी जानता हूँ कि जिस दिन आपने माफ़ी मांगी उस दिन भी मेरी मोहब्बत इन आंखों में झिलमिलाई थी। उसकी आंखों को गौर से देखते आहिस्ता से उसे खुद से लगाया। इनफैक्ट शहजाद से बात करने पर मैंने आपको इसीलिए उकसाया था कि मैं जानता था वो लड़का मोहब्बत के मामले में कमज़ोर है। वो सिर्फ ज़ाहिरी शख्सियत पर फिदा है, इस एटम बम को अंदर से वो नहीं जानता। उसकी आखिरी बात पर मुजराब गुस्से से तिलमिलाई। और वैसे भी हकीकत पसंद होना हर एक के बस की बात नहीं थी। आपकी पहली गलती थी, इसलिए मैंने मार्जिन दिया, और आपको छोड़ने वाला फैसला जो मैं कभी मरकर भी नहीं कर सकता था, जिसे मैं किसी कीमत पर अपनी ज़ुबान पर नहीं ला सकता था, सिर्फ आपको दुनिया की असल शक्ल दिखाने के लिए कहा। आहिल की बात पर फिर से आंसू आंखों से बरसे, जिन्हें अब की बार आहिल की पोरों ने मोहब्बत से चुना। बच्चे कभी भी अच्छे बुरे नहीं होते। माँ बाप की तरबियत उन्हें अच्छा बुरा बनाती है, और फिर जो बुरे होते हैं वो ताउम्र लोगों की ज़िंदगी अजीरन करते हैं। मेरी कभी भी आपसे कोई परखाश नहीं रही, ना मैं कभी आपसे जेलस हुआ। अपनी मोहब्बत से भी भला कोई जेलस होता है। आप तो मेरा हिस्सा थी, तो आपसे आहिल रुका और मुजराब की धड़कनें भी। मोहब्बत को महबूब की नज़र में देखने का मंजर बहुत जानलेवा होता है, और मुजराब इसी मंजर को देख रही थी। मैं चाहता था मेरी मुजराब में कोई कमी ना रहे, हर दिल में आपके लिए मोहब्बत और एहतराम हो। पता है, बाप के बगैर बच्चे पल जाते हैं और माँ के बगैर बच्चे रुल जाते हैं। मैं नहीं चाहता था कोई ये कहे कि मुंतहा नहीं है ना, इसलिए ये ऐसी हो गई। जब हम इतने प्यार करने वाले आपके इर्द गिर्द थे तो कोई आपको ऐसा क्यों कहे। जहाँ मुझे जहांगीर मामू और मामा की खामियां नजर आईं, वहाँ मैंने खुद आगे भरकर आपको गलत सिम जाने से रोका। मुजराब, मोहब्बत सिर्फ दो मीठे बोल बोलने का नाम नहीं है, बल्कि मोहब्बत असल वो है जो आपकी सिमतों को ठीक करे, जो हर लम्हा आई लव यू ना कहे, बल्कि हर लम्हा आपके एहसासात का ख्याल रखे, आपको मोहब्बत में गलत रास्तों के तयन से रोके। अगर फिर भी आपको मेरी मोहब्बत में कमी नज़र आ रही है तो मैं इससे पहले कि आहिल उसे आई लव यू कहता, मुजराब ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे कुछ भी बोलने से रोक दिया। मुझे आपकी मोहब्बत लफ्ज़ों के रूप में नहीं चाहिए, अमल के रूप में चाहिए, और आज मुझे आपकी मोहब्बत पर यकीन आ गया है। मुझे लफ्ज़ों के गिरदाब में मत धकेले। मैं जान गई हूँ ऐसी मोहब्बतें सिर्फ वक्ती होती हैं। मुझे आपसे वैसी ही मोहब्बत चाहिए जैसी आप हमेशा से करते आए हैं। इस डगर को मत बदलिएगा। उसके कंधे पर सर रखे तशक्कर के आंसू बहाती मुजराब को आहिल ने मोहब्बत से समेट लिया। आंखों में तेरे करीब होने की होने लगी आदत मुझे, तुझ पे फिदा होने की। कमरे में गूंजने वाले गाने के इन अल्फाज पे मुजराब होले से मुस्कुराई।
لوگ نشے کے عادی ہوتے ہیں اور آپ نے مجھے اپنی عادت کا ایسا نشہ لگایا ہے کہ میں ساری زندگی اب اس نشے سے باہر نہیں آنا چاہتی۔ اس سے زیادہ اظہار وہ اور کیا کرتی۔ اب یہ نشہ بڑھے گا، رکے گا نہیں۔ آہل کی مسکراتی آواز پر اس نے سکون سے آنکھیں موند لی اور اس کے ساتھ ہی یہ چھوٹا سا خوبصورت ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔